Assalamu alaikum class 10. Today we are going to study peripheral nervous system, peripheral somatic nervous system and so on. So what is peripheral nervous system? Peripheral nervous system is composed of nerves and ganglia. Peripheral nervous system में क्या होता है? Nerves और ganglia. Ganglia क्या है? Ganglia are the clusters of neuron cell bodies outside CNS. गैंग्लिया क्या है? क्लस्टर है न्यूरॉन सेल बॉडीज का आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नर्व्स अराइज और लेड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सो दे आर नेम्ड एज क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स. ह्यूमंस हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. ह्यूमंस के पास क्या है? 12 पेयर्स है क्रेनियल नर्व्स के, 31 पेयर्स है स्पाइनल नर्व्स के. Some cranial nerves are sensory, some are motor, and some are mixed. On the other hand, all spinal nerves are mixed nerves. Cranial nerves motor भी हो सकती हैं, sensory भी और mixed भी, क्योंकि spinal nerves सारी mixed nerves हैं. Cranial and spinal nerve makes two pathways. अब cranial और spinal nerve दो pathways बनाते हैं, sensory pathway and motor pathway. Sensory pathway conduct impulses from receptor to central nervous system and motor pathway conduct impulse from central nervous system to effector. Now motor pathway makes two system. अब दो system motor pathway बना रहे हैं, somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system क्या है? It is responsible for conscious and voluntary actions. जो हम अपने conscious में consciousness में करते हैं, actions voluntarily करते हैं, वो सब सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके लिए. इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स दैट कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स. जो ऑटोनॉमिक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल. वो एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो हमारे कॉन्शियस में नहीं होती, वो सारी होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर. इट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स that send impulses to cardiac muscles, smooth muscles and glands. Autonomic nervous system comprises of sympathetic system and parasympathetic system. अब autonomic nervous system में दो तरह के systems हैं, sympathetic and parasympathetic. Sympathetic nervous system prepares body to deal with emergency situation. Sympathetic nervous system क्या करता है? Body को prepare करता है ताकि वो deal कर सके emergency situations के साथ. This is often called fight or flight response. During an emergency situation, this system takes necessary action. एक emergency situation में ये system necessary actions लेता है. For example, it dilates pupil, accelerates heartbeat, increase करता है breathing rate और inhibit करता है digestion. जब stress end होता है तो parasympathetic nervous system action लेता है and normalize all functions. It causes pupil to contract, promote digestion and slows the rate of heartbeat and breathing rate. मुझे important याद रखने, ये difference important है याद रखने कि sympathetic में क्या हो रहा है और parasympathetic में क्या हो रहा है. So now we are gonna discuss reflex action. When central nervous system send impulses to muscles and glands, two types of action result. जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पल्स सेंड करता है मसल्स और ग्लैंड्स में तो दो तरह के एक्शन होते हैं. हायर सेंटर ऑफ ब्रेन कंट्रोल कॉन्शियस एक्शंस और वॉलंटरी एक्शंस. जो हायर सेंटर है ब्रेन के, वो कॉन्शियस एक्शंस और वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है. व्हेन इम्पल्सेस आर नॉट पास टू हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, इट रिजल्ट्स इन रिस्पॉन्सेस व्हिच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल. सच रिस्पॉन्सेस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस. अब ये कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस है. Sometimes involuntary response produced by CNS is very quick. जो involuntary response produce होता है central nervous system से, वो बहुत quick होता है. Such a response is called reflex action. और जो pathway follow होता है by nerve impulse for producing a reflex action is called reflex arc. The most common example of reflex action is withdrawal of hand after touching a hot object. जब एक गर्म चीज़ को हाथ लगाओ तो एकदम से पीछे हाथ करते हैं. अब ये अनकॉन्शियस है, ठीक है. अब यहाँ पर ऐसे नहीं था कि पहले वो मैसेज भेजे ब्रेन को, फिर ब्रेन प्रोसेस करे, फिर ब्रेन सिग्नल भेजे, इतने में तो हाथ जल जाएगा.
ये स्पाइनल कॉर्ड इसे कंट्रोल करता है, फौरन से हाथ पीछे कर देता है, अनकॉन्शियस एक्शन होता है। In this reflex action, spinal cord acts as coordinator. Heat stimulates temperature and pain receptors in skin. A nerve impulse is generated which is carried by sensory neurons to interneurons of spinal cord. Interneurons impulse pass होती है motor neurons में, जो कैरी करते हैं muscle of arms में, जिसकी वजह से muscles contract करते हैं और हाथ पीछे की तरफ लेकर जाते हैं. During it, other interneurons transmit nerve impulse up to brain, so person became aware of pain and what happened. अब इसके दौरान में क्या होता है कि दूसरे न्यूरॉन्स ब्रेन को मैसेज भेजते हैं ताकि पर्सन अवेयर हो कि हुआ क्या है यहाँ पर. Receptors in humans. We know that organs or parts which are specifically built to detect particular type of stimuli are called sense organs or receptors. वो organs जो basically किसी stimuli को detect होने के लिए बने हैं उन्हें sense organs या receptors कहते हैं. काफ़ी ज़्यादा receptors होते हैं मैन में, ear, eyes, nose, taste buds, receptors of touch, heat, cold, etc. हम eyes पढ़ते हैं, eye. Or eyes are located in small portion of skull known as orbits or eye sockets. हमारी eyes जो हैं skull के small portion में locate होती हैं जिसे orbit या eye socket कहते हैं. Eyelids क्या करती हैं? Wipe eyes and prevent dehydration. हमारे आंसू जो होते हैं वो eyelids से आते हैं, वो आंखों को साफ करती हैं और डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करती हैं. They spread tears on eye, which contain substances for fighting bacterial infections. वो आँख में आंसू पैदा करते हैं जिनमें ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हैं. Eyelashes prevent fine particles from entering eye. Eyelashes क्या करती हैं? प्रिवेंट करते हैं फाइन पार्टिकल्स को कि वो एंटर हो सके आई में. अब स्ट्रक्चर जो आई का 3 लेयर्स में डिवाइड है. आउटर लेयर, उसमें क्या है? स्क्लेरा और कॉर्निया. Outer layer of eyeball consists of sclera and cornea. Sclera give eye most of its white color. It consists of dense connective tissue and protects inner component of eye and maintain its shape. Outer layer में क्या है eye के? Sclera और cornea. Sclera क्या करती है? eye को उसका white color देती है और उसमें connective tissues हैं और protect करती है eye के inner components को और thirdly उसकी shape maintain करती है. Sclera की अगर कोई शॉर्ट आ जाए स्क्लेरा पर तो ये तीनों पॉइंट्स लिख देने हैं उसमें. अब इन द फ्रंट स्क्लेरा जो है इन द फ्रंट फॉर्म्स ट्रांसपेरेंट कॉर्निया. कॉर्निया एडमिट्स लाइट टू द इंटीरियर ऑफ आई एंड बेंड लाइट रेज सो दैट दैट कैन बी ब्रॉट टू फोकस. अब कॉर्निया क्या करता है? वो स्क्लेरा के बिल्कुल सामने होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. कॉर्निया एडमिट करते हैं लाइट को आई के इंटीरियर में और लाइट रेज को बेंड करता है सो दैट दे कैन बी ब्रॉट टू फोकस. अब जो मिडिल लेयर से कोरोइड कहते हैं, मिडिल लेयर इज कॉल्ड कोरोइड. मिडिल लेयर कोरोइड होती है. इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड गिव्स इनर आई अ डार्क कलर. मिडिल आई कोरोइड है, उसमें ब्लड वेसल्स है और वो इनर आई को एक डार्क कलर देती हैं. डार्क कलर प्रिवेंट डिसरप्टिव रिफ्लेक्शंस विद इन आई. डार्क कलर क्या करता है? रिफ्लेक्शंस प्रिवेंट करते हैं आई में. बिहाइंड कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे कोरोइड होता है. कोरोइड बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग कॉल्ड आइरिस. कोरोइड बेंड होता है ताकि एक मस्कुलर रिंग बना सके जिसका नाम है आइरिस. देयर इज अ राउंड होल कॉल्ड प्यूपिल इन द सेंटर ऑफ आइरिस. आइरिस के बिल्कुल सेंटर में प्यूपिल होता है. आफ्टर स्ट्राइकिंग कॉर्निया लाइट पासिस थ्रू प्यूपिल. साइज ऑफ प्यूपिल इज एडजस्टेड बाय मसल्स ऑफ आइरिस. प्यूपिल constricts in bright light when circular muscles contract and pupils dilate in dim light when radial muscles contract. मिडिल लेयर क्या है? कोरोइड. उसमें ब्लड वेसल्स हैं और वो इनर आई को एक डार्क कलर देते हैं. डार्क कलर प्रिवेंट करते हैं रिफ्लेक्शंस आई से. कॉर्निया के पीछे कोरोइड है जो एक मस्कुलर रिंग बनाते हैं आइरिस. आइरिस के अंदर एक राउंड होल इसे प्यूपिल कहते हैं. प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है ब्राइट लाइट में जब सर्कुलर मसल्स आइरिस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और प्यूपिल डायलेट होता है डिम लाइट में जब रेडियल मसल्स आइरिस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. अब बिहाइंड आइरिस देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस व्हिच फोकसेस लाइट ऑन रेटिना. अब बिहाइंड आइरिस एक कॉन्वेक्स लेंस है जो फोकस करता है लाइट रेटिना पर. लेंस इज अटैच्ड टू सिलियरी मसल्स ऑफ आई विया अ रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट. जो लेंस है वो आई के सिलियरी मसल से अटैच होते हैं विया अ रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट. To clearly see an object far away,
Ciliary muscles are relaxed and lens become less convex. कोई दूर की चीज़ देखने के लिए ciliary muscles relax होते हैं और करीब की चीज़ देखने के लिए contract होते हैं. Inner layer जो है, अब third layer inner layer है, ये sensory है and is called as retina. Inner layer is sensory and is called as retina. It contains photosensitive cells called rods and cones and associated neurons. Retina में क्या होते हैं? Photosensitive cells होते हैं जिन्हें rods, cones और associated neurons कहते हैं. सॉरी बच्चों. अच्छा, rods क्या होते हैं? Rods are sensitive to dim light. Rods are sensitive to dim light, while cones are sensitive to bright light. Rods sensitive है dim light के लिए, cones sensitive है bright light के लिए. So they distinguish different colors. वो different colors distinguish करते हैं. Retina के दो points हैं, fovea और optic disc. Retina has 2 points, that is fovea and optic disc. Fovea is a dip in retina. Retina के अंदर एक dip होती है जिसे fovea कहते हैं और लेंस के directly opposite होती है and is densely packed with cone cells. It is largely responsible for color vision and sharpness. ये color vision और sharpness के लिए responsible होती है. Optic disc एक point है retina पर जहाँ optic nerves enter होती हैं retina में. That is also referred to as blind spot. अच्छा, अब जो iris है वो आई की कैविटी को दो चैम्बर्स में डिवाइड कर रही है. एंटीरियर चैम्बर इज इन फ्रंट ऑफ आइरिस, दैट इज बिटवीन कॉर्निया और आइरिस. जो एंटीरियर चैम्बर है वो कॉर्निया और आइरिस के दरमियान में है और पोस्टीरियर चैम्बर आइरिस और रेटिना के दरमियान में है. जो एंटीरियर चैम्बर है उसमें क्लियर फ्लूइड है एक्वस ह्यूमर और पोस्टीरियर चैम्बर में जेली लाइक फ्लूइड है विट्रस ह्यूमर. ये क्या करते हैं? हेल्प्स मेंटेन द शेप ऑफ आई एंड सस्पेंड द डेलिकेट लेंस. Light from object enter eye and is refracted when it passes through cornea, aqueous humor, lens and vitreous humor. Lens focus करते हैं light retina पर, image fall करते हैं retina पर. Rods और cone generate करते हैं nerve impulse optic nerve में और ये impulse carried होता है to brain which makes sensation of vision. Rods में एक pigment होता है जिसे कहते हैं rhodopsin. Very important point. Rods contain a pigment called rhodopsin. जब लाइट फॉल करती है रोडोप्सिन पर, इट ब्रेक्स फॉर जनरेटिंग अ नर्व इम्पल्स. इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स आर अगेन कन्वर्टेड इनटू रोडोप्सिन. लाइट की एब्सेंस में ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स दोबारा रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं. बॉडी सिंथेसाइज करता है रोडोप्सिन विटामिन ए से. इस वजह से डेफिशिएंसी विटामिन ए की पुअर नाइट विजन कॉज करती है. विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो पुअर नाइट विजन, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है. कॉर्निया जो है वो एक पिगमेंट है जिसे आयोडोप्सिन भी कहते हैं. कॉन्स एक पिगमेंट है. कॉन्स ऑल्सो कंटेन अ पिगमेंट नोन एज आयोडोप्सिन. एक पिगमेंट है कॉन्स में जिसे कहते हैं आयोडोप्सिन. 3 मेन टाइप्स है कॉन्स के और ईच टाइप का एक स्पेसिफिक आयोडोप्सिन है. ईच टाइप ऑफ कॉन रिकॉग्नाइज करते हैं वन ऑफ 3 प्राइमरी कलर्स, ब्लू, ग्रीन या रेड. इफ एनी टाइप ऑफ कॉन इज नॉट वर्किंग, इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज दैट कलर. अगर कोई एक कॉन भी सही काम नहीं करा तो जिस कलर के लिए स्पेसिफिक है वो कलर हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. एंड सच अ पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स. इसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस. नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ आई. जो वर्किंग आई की है वो अफेक्ट होती है चेंजेस की वजह से. 2 डिसऑर्डर्स हैं, मायोपिया, शॉर्ट साइट, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइट. मायोपिया क्या है? इलोंगेशन जो है ना आई बॉल्स की रिजल्ट्स इन मायोपिया. इलोंगेशन ऑफ आई बॉल्स रिजल्ट्स इन मायोपिया. सच पर्सन्स आर नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ऐसे पर्सन्स जो हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं देख सकते. जो इमेज है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की दैट इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, दे कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस. हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइट है जब आई बॉल शॉर्टन हो जाएगा. Such persons are not able to see near objects. Convex lens यूज होता है इस प्रॉब्लम में. अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशंस मुस्लिम साइंटिस्ट के देखते हैं. अली इब्न ईसा 950 से 1012 में एक फेमस अरब साइंटिस्ट है. He wrote 3 books on ophthalmology. उसने 3 बुक्स लिखी ऑफ्थेमोलॉजी पर.
स्टडी ऑफ डिजीजेस एंड सर्जरी ऑफ आइज, उसने 130 आई डिजीजेस डिस्क्राइब करी और 143 ड्रग्स डिस्क्राइब किए आई डिजीज ट्रीट करने के लिए। इब्न अल-हैशम जो है अरब साइंटिस्ट है, मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू प्रिंसिपल्स ऑफ आई एंड वियर, उसे फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं। हिज बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स करेक्टली एक्सप्लेन एंड प्रूव मॉडर्न थियोरी ऑफ विजन। ही डिस्कस टॉपिक्स ऑफ मेडिसिन एंड आई सर्जरी इन हिज बुक, उसने कुछ इम्प्रूवमेंट्स दी स्ट्रक्चर ऑफ आई से रिलेटेड, इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड।